السلام علیکم، BTV نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلیٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان نے افغان مسئلے کا پرامن حل نکالنے کی کوشش کی اور کرتے رہیں گے۔ افغانستان میں خانہ جنگی کے خطرے کے پیش نظر تیاری کر لی، تشدد بڑھا تو مہاجرین کی آمد کا خدشہ بھی موجود رہے گا۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار نے خبردار کر دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو میں کہا، افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ نہیں، اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ کو افغانستان سے ذمہ دارانہ خلا کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان میں امریکی بیسز کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ افغانستان نے بہت برے حالات دیکھے، پاکستان نہیں چاہتا افغانستان کسی سول وار کا شکار ہو۔ طالبان اور افغان صدر اشرف غنی کے نمائندوں سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ملتان میں پریس کانفرنس، کہا افغان مسئلے پر بات چیت کے لیے وہ کل تاجکستان روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم بھی ازبکستان جائیں گے۔ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری، صوبہ ہرات میں افغان فورسز کو پسپائی کا سامنا۔ شمالی افغانستان میں فریقین میں گھمسان کی جنگ، طالبان کا 85% حصے پر قبضے کا دعویٰ۔ ترکی کی جانب سے ایئرپورٹ سیکیورٹی کی پیشکش کے بعد ایران اور روس نے بھی طالبان سے تعلقات بڑھانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ کشمیریوں کا لیڈر عمران خان جیسا بزدل انسان ہو ہی نہیں سکتا، سلیکٹڈ کشمیر کو مودی کی جھولی میں پھینک کر آ گیا۔ مریم نواز کا وادی نیلم کے علاقے شاردا میں جلسے سے خطاب، کہا نواز شریف کو برا کہنے والا نواز شریف کے امیدواروں پر نظر لگا کر بیٹھا ہے، انہیں تحریک انصاف میں شمولیت کی دعوت دے رہا ہے، آٹا اور چینی چور جہاں سے آیا ہے وہیں بھجوائیں گے۔ مریم اور بلاول کو کیا پتا پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا قربانیاں دیں، فواد چودھری نے دونوں رہنماؤں کو کشمیر کی تاریخ سے ناواقف قرار دے دیا۔ فردوس عاشقاوات نے کہا نادان سیاستدان غیر ذمہ دارانہ بیانات دے کر کشمیر کا مقدمہ کمزور کر رہے ہیں، ہماری توپوں کا رخ نریندر مودی کی طرف ہونا چاہیے۔ شہباز شریف نے FIA کی تفتیشی ٹیم پر ہراساں کرنے کا الزام لگا دیا، بولے ان سے غیر مناسب رویہ اپنایا گیا اور بےہودہ گفتگو کی گئی۔ FIA افسران اونچی اونچی آواز میں ہنس کر مذاق اڑاتے رہے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی شوگر ملز کیس میں عبوری ضمانت 2 اگست تک منظور۔ ترجمان FIA نے صدر نون لیگ کے الزامات مسترد کر دیے، کہا تفتیشی ٹیم شہباز شریف کو احتراماً میاں صاحب کہہ کر پکارتی رہی، انہیں کافی کی پیشکش بھی کی۔ شہباز شریف نے سوالوں کے غیر متعلقہ جوابات دیے، منظر عام پر نہ لانے کی درخواست بھی کی۔ آزاد کشمیر کی انتخابی مہم چھوڑ کر بلاول بھٹو زرداری امریکی یاترا پر روانہ، چیئرمین پیپلز پارٹی امریکہ میں 1 ہفتے قیام کریں گے، اہم ملاقاتیں متوقع۔ شیخ رشید کی بلاول بھٹو پر کڑی تنقید، کہا بلاول 3 بار امریکہ چلا جائے تب بھی عمران خان 5 سال پورے کریں گے، افغانستان سے متعلق جو فیصلہ افغان عوام کریں گے قبول ہوگا۔ وزیر داخلہ نے آزاد کشمیر الیکشن کے بعد حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات ٹھیک ہونے کی پیشگوئی بھی کر دی۔ پاکستان میں کرونا پھر بے قابو ہونے لگا، ایک دن میں مزید 35 زندگیاں نگل لیں، اموات کی تعداد 22,555 تک جا پہنچی، 24 گھنٹے میں 1,828 نئے کیسز رپورٹ، مثبت کیسز کی شرح 3.79% رہی۔ وادی سوات کی خوبصورت کالام ویلی لہو رنگ ہو گئی، 2 گروہوں میں زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئیں، 5 افراد جاں بحق، 12 زخمی، فریقین کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ سکر کے صحرائی علاقے سالوپٹ میں معصوم بچی مگرمچھ کا شکار ہو گئی، نارا کینال کے کنارے کھیل میں مصروف بچی کو خطرناک مگرمچھ حملہ کر کے نگل گیا، ورثہ غم سے نڈھال، 3 ماہ قبل بھی مگرمچھ ایک بچی کو نگل چکا۔ راولپنڈی میں شادی شدہ عورت کو طلاق لے کر خود سے شادی پر مجبور کرنے والے ملزم کو پولیس نے دھر لیا، ملزم خاتون پر تشدد کرتا رہا اور ویڈیو بھی بناتا رہا، گزشتہ روز ویڈیو سوشل میڈیا پر آنے کے بعد ایئرپورٹ پولیس نے ایکشن لیا۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے وزیر اعظم عمران خان کو بہترین فنکار قرار دے دیا، ایوارڈ دینے کی خواہش کا بھی اظہار۔ عمران اسماعیل نے مرتضی وہاب کی متوقع ایڈمنسٹریٹر تعیناتی کی بھی مخالفت کر دی۔ سندھ میں تعلیم کے ساتھ مذاق جاری، 9ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا آخری پرچہ بھی آؤٹ، انتظامیہ نقل مافیا کے سامنے بے بس، شکارپور، لاڑکانہ، نواب شاہ سکھر سمیت متعدد شہروں میں پرچہ وقت سے پہلے آیا۔ دھابے جی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، پانی کی 72 انچ قدر کی پائپ لائن پھٹ گئی، کراچی کو 10 ملین گیلن پانی کی فراہمی بند، MD واٹر بورڈ کے مطابق لائن کی مرمت کا کام جاری ہے۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کی انسداد تجاوزات ٹیم کا گجر نالے کے اطراف 10 مقامات پر آپریشن، الدین پارک میں 2 مقامات پر
शॉपिंग मॉल और पवेलियन एंड क्लब पर तजावुजात का सफाया कर दिया गया। FBI ने नई एक्सपोर्ट सहूलती स्कीम 2021 के कवानीन जारी कर दिए। नई स्कीम 14 अगस्त से नाफिजुल अमल होगी। मौजूदा स्कीमों को मरहलावार 2 बरसों के अंदर खत्म कर दिया जाएगा। ईद कुर्बान आते ही महंगाई ने टॉप गियर लगा दिया। ईद के खानों को लजीज बनाने वाले मसाले, सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर। लाहौर के शहरी परेशान, महंगे दामों खरीदारी पर मजबूर। पाकिस्तान में जिलहज का चांद देखने के लिए रुयत हिलाल कमेटी की कराची में अहम बैठक। इजलास की सदारत मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। जोनल कमेटियों के इजलास भी होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। तलगाम से मजीद 4 नौजवान गिरफ्तार, नामालूम मुकाम पर मुंतकिल। श्रीनगर में भारतीय फोर्सेज ने एक फैमिली को लूट लिया। OIC ने भारतीय हुकूमत से अपनी टीम कश्मीर में भेजने की इजाजत मांग ली। मुल्क में मेघा बरसने की रुत आ गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मौसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें ज़ेर आब। वस्ती पंजाब और अंदरून सिंध भी बरसात। लाहौर में काली घटाओं और ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार। और मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। मुल्तान की कायापुर मवेशी मंडी में ब्राह्मण, साहिवाल, दाजिल और देसी नस्ल के तगड़े जानवरों की धूम। शहरी कीमतें सुनकर कानों को हाथ लगाने लगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। वजीर आज़म इमरान खान का IG इस्लामाबाद को हर पहलू से जोड़े पर तशद्दुद केस की तफ्तीश आगे बढ़ाने की हिदायत। IG इस्लामाबाद ने वजीर आज़म को केस में गिरफ्तार मुलजिमान से मुतालिक समेत मुतासिरा लड़की और लड़के के बयानात, मुलाकात के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। वजीर आज़म इमरान खान से IG इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान की मुलाकात हुई, जिसमें IG इस्लामाबाद ने गोलड़ा में जोड़े पर तशद्दुद केस पर वजीर आज़म को ब्रीफिंग दी। IG इस्लामाबाद ने वजीर आज़म को केस में गिरफ्तार मुलजिमान से मुतालिक समेत मुतासरा लड़की और लड़के के बयानात, मुलाकात के हवाले से तफसीली तौर पर आगाह किया। वजीर आज़म इमरान खान ने IG इस्लामाबाद को हर पहलू से केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने भी मामले पर नोटिस ले लिया और इस हवाले से कमेटी की आइंदा मीटिंग में ब्रीफिंग तलब कर ली गई है। याद रहे, इस्लामाबाद तशद्दुद केस में SSP इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि मुतासरा जोड़े ने शादी कर ली। शादी की तस्दीक बयानात रिकॉर्ड कराने के दौरान हुई। गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद 11 लड़का और लड़की को तशद्दुद केस में वफाकी पुलिस ने मुतासरा लड़के और लड़की के बयानात रिकॉर्ड किए थे। बयानात 161 के तहत रिकॉर्ड किए गए। पुलिस ने बताया कि दोनों मुतासरीन के बयानात को तफ्तीश का हिस्सा बना दिया गया। मुतासरीन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी इमदाद की यकीन दहानी पर राजी हुए। केस में मुलविस मज़ीद अफराद की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के इब्तदाई असरात नजर आना शुरू हो गए, जिसके बाद NCOC के सरबराह असद उमर ने शादी हॉल और रेस्टोरेंट मालिकान को वार्निंग दे दी। NCOC के सरबराह असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि 2 हफ्ते पहले कहा था मस्नूई जहानत के मॉडल चौथी लहर का खदशा जाहिर कर रहे हैं। अब कोरोना की चौथी लहर के आगाज के वाज़ेह इब्तदाई आसार नजर आ रहे हैं। SOPs की नाकिस तामील, मुख्तलिफ इकसाम का फैलाव, खुसूसन भारतीय इकसाम का वायरस कोरोना की चौथी लहर की अहम वजह है। असद उमर का कहना था कि इंडोर शादियों, रेस्टोरेंट्स और जिम में वैक्सीनेशन शर्त को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर मालिकान ने जिम्मेदारी का मुजाहिरा नहीं किया तो इन सहूलतों को बंद करना पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में कोरोना चौथी लहर के खदशे का इजहार करते हुए सूरत हाल खराब होने की सूरत में पाबंदियां लगाने का इंदिया दिया था। कोरोना सूरत हाल से मुतालिक कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना वबा की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। इस वक्त डेल्टा वायरस भारतीय वेरिएंट पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। बांग्लादेश में कोरोना की नई किस्म फैलने के बाद हालात बहुत खौफनाक सूरत अख्तियार कर गए। कराची में पानी माफिया जीत गया, सनतकार हार गए, लिहाजा पानी के बहरान की वजह से मुतादिद सनतकारों के साथ मारूफ ताजिर लीडर SM मुनीर ने भी अपनी लेदर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बंद कर दी। जुमे के रोज कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की जानिब से काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एनर्जी जर्नलिस्ट्स के एजाज में दिए गए ब्रांच में मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए SM मुनीर ने बताया कि उन्हें अपनी लेदर फैक्ट्री की पैदावारी सरगर्मियों को जारी रखने के लिए सिर्फ पानी की खरीदारी पर सालाना 20 करोड़ से 25 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते थे। इतना महंगा पानी खरीद कर मसनूआत तैयार करके उन्हें बरामद करना मुमकिन न था। पानी की अदम दस्तयाबी की वजह से बरामद कुनिंदा सनतकारों ने अब इस शहर में अपना कारोबार बंद करने का फैसला
फैसला कर लिया है। बरामद कुनंदगान का कहना है कि पानी न मिलने की वजह से वो अब कराची से इंडस्ट्री पंजाब मुंतकिल कर रहे हैं। ऐसे मुनीर ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के एक्सपोर्ट बढ़ाने के टारगेट के आगे कराची की पानी माफिया आ गई। उन्होंने बताया कि इस वक्त 10 से 15 मजीद कारखाने कराची से मुंतकिल हो रहे हैं। कारखाने बंद होने से न सिर्फ एक्सपोर्ट मुतासिर होगी बल्कि बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि कराची में पानी लाइनों में नहीं आता लेकिन वाटर टैंकर्स में दस्तयाब है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। डीजी हेल्थ का कहना है कि मेडिकल ऑपरेशन, नौकरियों के टेस्ट या इंटरव्यूज के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखना लाजमी है। डीजी हेल्थ का कहना है कि मेडिकल ऑपरेशन, नौकरियों के टेस्ट या इंटरव्यूज के लिए भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट रखना लाजमी है। इनके मुताबिक सर्टिफिकेट न होने पर ओपीडीज में आने की इजाजत नहीं होगी। सर्टिफिकेट लाजमी होने का इतलाक निजी और सरकारी अस्पतालों पर होगा। नौकरियों के लिए टेस्ट, इंटरव्यू से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तमाम निजी और सरकारी इदारे उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट चेक करने के पाबंद होंगे। सिर्फ वही उम्मीदवार टेस्ट या इंटरव्यू दे सकेगा जो वैक्सीनेटेड होगा। दूसरी जानिब एनसीओसी की जानिब से कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार देने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, जिसमें कहा सेहतमंद अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार देना खिलाफ कानून है। दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एनसीओसी की जानिब से हर शहरी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार दी गई है। वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों को इज्तिमाई तकरीबात में शिरकत की इजाजत नहीं दी जा रही। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 35 अफराद इंतकाल कर गए। 1828 नए केसेस भी रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रही। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद-ओ-शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,134 टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,828 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 35 अफराद इंतकाल कर गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.79% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 2,02,555 हो गई और मजमूई केसेस 9,71,304 तक जा पहुँचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 912 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 9,12,295 हो गई है, जबकि फाइल केसेस की तादाद 36,454 है। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमेरिका में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के मामले पर बड़ी पेशरफ्त। अमेरिकी रियासत ह्यूस्टन में तैनात पाकिस्तानी कौंसल जनरल अबरार हाशमी का कतर एयरवेज की जानिब से पाकिस्तानी मुसाफिरों की टिकट्स मंसूख होने पर कतरी हुक्काम से राब्ता। इब्रार हाशमी ने कतर के कौंसल जनरल से राब्ता करके पाकिस्तानियों की टिकटें मंसूख होने के बाद की सूरत हाल से आगाह किया और बताया कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अमेरिका से 20% मुसाफिर लाने की हिदायत की है। कौंसल जनरल इब्रार हाशमी ने कहा कि कतर एयरवेज ने इजाफी बुकिंग की, जिसकी वजह से बाद में टिकटें मंसूख करना पड़ी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी मुसाफिरों को पाकिस्तान वापस भिजवाने के लिए एनसीओसी से भी राब्ता किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की मुश्किलात से आगाह हैं और उन्हें हल करने की कोशिश कर रहे हैं। परेशानी का सामना करने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों से कौंसलेट के नुमाइंदे राब्ते में हैं। जर्मनी में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के मिक्स वैक्सीन लगवाने की इजाजत दे दी गई। हुक्काम के मुताबिक अगर लोग चाहें तो पहली डोज के बाद किसी भी कंपनी का mRNA वैक्सीन की बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। जर्मनी ने अपने लोगों को उम्र के हिसाब से कोरोना से बचाव की मिक्स वैक्सीन लगवाने की इजाजत दे दी है। दुनिया के मुताबिक ममालिक में इस वक्त एक ही तरह की वैक्सीन के पहले और दूसरे डोज लगवाए जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जैसे ममालिक में हुकूमत ने लोगों को मर्जी के मुताबिक कुछ अरसे बाद दूसरी वैक्सीन लगवाने की इजाजत भी दे रखी है। तहम अब तक कोई ऐसा मुल्क नहीं था जिसने लोगों को बैक वक्त मिक्स वैक्सीन लगवाने की इजाजत दी है, लेकिन अब जर्मनी ने अपने शहरियों को बैक वक्त मिक्स वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी। जर्मनी की वैक्सीनेशन से मुतालिक हुकूमती इदारे स्टेको ने कहा है कि जिन लोगों ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पहली डोज एस्ट्राजेनेका लगवाई है, वो चाहें तो अपनी उम्र के हिसाब से दूसरी डोज मॉडर्ना या फाइजर की भी लगवा सकते हैं। इदारे के मुताबिक अगर लोग चाहें तो पहली डोज के बाद किसी भी कंपनी का mRNA वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लगवा सकते हैं। शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। हुकूमत ने तरसील करने वाली कंपनियों के लिए इंश्योरेंस गारंटी लाजमी करार दे दी। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के रास्ते अशिया की तरसील करने वाली कंपनियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए मालियत की इंश्योरेंस गारंटी को लाजमी करार देने का फैसला कर लिया।
वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान के रास्ते अशिया की तरसील करने वाली कंपनियों के लिए 1.5 करोड़ रुपए मालियत की इंश्योरेंस गारंटी को लाजमी करार देने का फैसला किया है। TIR ऑपरेटर्स को A ग्रेड की हामिल इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से डायरेक्टर जनरल ट्रांजिट ट्रेड कराची के नाम पर इंश्योरेंस गारंटी जमा करवाना होगी, जिसके लिए FBR ने कस्टम्स रूल्स में तरामीम करने का फैसला किया है। FBR ने कस्टम्स रूल्स में तरामीम का मुसव्वदा तैयार कर लिया है और इस मुसव्वदे पर स्टेक होल्डर से 15 दिन के अंदर RO तजावीज़ तलब कर ली है। मुकर्ररा मियाद के बाद मौसूल होने वाली तजावीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। कस्टम्स रूल्स में तरामीम के मुसव्वदे में बताया गया है कि TIR रूल्स के तहत ट्रांसपोर्ट कंपनियों को सामान की तरसील के लिए पाकिस्तान की राहदारी इस्तेमाल करने के लिए DG ट्रांजिट ट्रेड कराची के नाम 1.5 करोड़ रुपए की माली इंश्योरेंस गारंटी जमा करानी होगी और पाकिस्तान के रास्ते अशिया की तरसील के लिए अशिया के भरे कंटेनर के पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते वक्त इन अशिया पर आयद ड्यूटी और टैक्सों की रकम के बराबर रकम रखी जाएगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। निजकारी कमीशन के एक आला अफसर ने इजलास में बताया कि पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुख्तलिफ असासाजात के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका कि किन असासाजात को फरोख्त किया जाए, लिहाजा इस मामले को फिलहाल मौखर कर दिया गया। निजकारी कमीशन का इजलास इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत वफाकी वजारत सनअत व पैदावार के नुमाइंदों, पाकिस्तान स्टील मिल्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वजारत निजकारी के आला हुकाम ने शिरकत की। निजकारी कमीशन के एक आला अफसर ने बताया कि इजलास में पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुख्तलिफ असासाजात के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा नहीं हो सका कि किन असासाजात को फिलहाल फरोख्त किया जाए, लिहाजा इस मामले को फिलहाल मौखर कर दिया गया है। पाकिस्तान स्टील मिल्स के असासाजात की मालियत का तखमीना लगाने के लिए हाल ही में बैरूनी फिल्म की खदमात हासिल की। बोर्ड मेंबरान इस हवाले से 2 ग्रोहों में तकसीम नजर आए कि आया स्टील मिल्स की 75% असासाजात इसके जिले इदारे को मुंतकिल किए जाएं, जिसका नाम स्टील कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, या फिर इसके 100% हस्से फरोख्त कर दिए जाएं। निजकारी की वजारत की जानिब से जारी मरासले में कहा गया है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी के हवाले से इंतजामात और इसके तफसीलात जमा कराने के हवाले से भी मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। शामिल करेंगे दुनिया भर से हैरान कर देने वाले हक़ाइक़ BTV इंफोटेनमेंट में। वस्त एशियाई मुस्लिम रियासत किर्गिस्तान में अदील और उनके साथी एक अनोखा फार्म चला रहे हैं, जहां आला नस्ल के एक्सपोर्ट क्वालिटी झींगर पाले जाते हैं। अदील ने बताया कि चीन में तले हुए झींगर बहुत शौक से खाए जाते हैं, जबकि अच्छी नस्ल के झींगरों का प्रोटीन से भरपूर आटा भी वहां बहुत पसंद किया जाता है। फिलहाल इनके फार्म पर तमाम झींगरों का मजमूई वजन तकरीबन 1 टन है, लेकिन चीन की मार्केट बहुत बड़ी है, जिसके लिए खेप में कम अज कम 5 टन झींगर होना जरूरी है। दुनिया की नजरों में अजीब महसूस होने वाला ये काम अदील के लिए एक संजीदा कारोबार है। उनका कहना है कि झींगरों की फार्मिंग कोई आसान काम नहीं, क्योंकि बेहतर नशोनुमा के लिए झींगरों को मुनासिब ग़िज़ा के अलावा मुस्तकिल तौर पर कम अज कम 30 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत और कम नमी वाला माहौल दरकार होता है। यही नहीं बल्कि झींगरों का ख्याल रखना भी जरूरी है, क्योंकि बाद औक़ात मामूली बद एहतियाती से लाखों झींगर रातों रात हलाक हो जाते हैं। अदील गोपारूफ का कहना है कि उनके फार्म पर झींगरों का जो आटा तैयार किया जाता है उसमें 70% प्रोटीन के अलावा दूसरे अहम ग़िज़ाई अज्जा भी वाफिर मिकदार में मौजूद होते हैं। लिहाजा ये आटा बॉडी बिल्डर्स, एथलेट्स और वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी बहुत मुफीद है। फिलहाल वो अपने फार्म की पैदावार किर्गिस्तान में ही फरोख्त कर रहे हैं, जिनमें तले हुए झींगरों के अलावा झींगरों का आटा भी शामिल है, जिसकी कीमत 7,000 सोम 13,000 पाकिस्तानी रुपए फी किलोग्राम है। इटली के शुमाली इलाके प्रिसेना में ग्लेशियर को पिघलने से बचाने के लिए कवर कर दिया गया है। माहौलियात के कारकुनों ने 1,20,000 मुरब्बा मीटर की सतह को कपड़े से ढांप दिया है। माहिरीन का कहना है कि इस तरह से 70% बर्फ को पिघलने से बचाया जा सकता है। दुनिया का महंगा तरीन बहरी जहाज सफर के लिए तैयार कर लिया गया है। बहरी जहाज में स्विमिंग पूल के साथ खाना खाने की सहूलत भी मौजूद होगी। जहाज को 2024 में सफर के लिए पेश किया जाएगा। 6 मंजिला सुपर लग्जरी बहरी बेड़े के हर अपार्टमेंट में किचन, जिम, लाइब्रेरी, अंदर और बाहर खाने का हॉल और बहुत कुछ मौजूद होगा। बहरी जहाज की इंतजामिया का कहना है कि रिहायशियों को आलमी मयार की तिब्बी सहूलतें भी दस्तयाब होंगी, ताकि वो महलिक वबा से तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठा सकें। शामिल करेंगे सेहत से मुताल्लिक़ खबरें BTV हेल्थ में। माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुसलसल 3 रोज़ की नींद मुतासिर होने से दिमागी, जिस्मानी और नफ्सियाती अवारिस लाहक हो सकते हैं।
उनमें सांस की कमी, गुस्सा, तन्हाई और चिड़चिड़ापन भी पैदा हो सकता है। फ्लोरिडा में होने वाले इस तहकीकी सर्वे में कहा गया है कि आज की तेज रफ्तार जिंदगी ने हमारी नींद छीन ली है और अगर नींद की कमी को हफ्तावार छुट्टियों में पूरा ना किया जाए तो पूरे हफ्ते कई कैफियत इंसान पर हमलावर हो सकती हैं। अगर 3 रोज की नींद खराब हो जाए तो अगले कई रोज तक इसके मनफी असरात जारी रहते हैं। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। पाकिस्तान के नामवर शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। मुनफरिद शायरी और अदबी खुसूसियात के बायस अहमद नदीम कासमी ने उर्दू अदब पर गहरे नक्श छोड़े। अहमद नदीम कासमी मगरबी पंजाब की वादी के गांव अंगा जिला खुशाब में पैदा हुए। इनका असल नाम अहमद शाह और नदीम तखल्लुस था। कासमी साहब ने शायरी की इब्तिदा 1931 में की, जब मौलाना मोहम्मद अली जौहर के इंतकाल पर उनकी पहली नज़म रोजनामा सियासत लाहौर के सुरूग पर शाया हुई और ये उनके लिए बहुत बड़ा एहसास था। उससे उन्हें आलम जवानी में ही गैर मामूली शोहरत हासिल हुई। अहमद नदीम कासमी ने अपनी 90 साल जिंदगी में अफसाना निगारी, सहाफत और शायरी के जरिए कलम का इल्म बुलंद किए रखा। उन्होंने अपनी तहरीरों में अदब बराए अदब की बजाय मकसदियत और फरोग दिया। मुनफरिद शायरी और अदबी खुसूसियात के बायस अहमद नदीम कासमी ने उर्दू अदब पर गहरे नकूश छोड़े। मारूफ टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने फारूक सत्तार और फयाजुल हसन चौहान की असलियत बेनकाब करने की धमकी दे दी। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो बयान में कहा कि फारूक सत्तार और फयाजुल हसन चौहान मेरे मुतालिक बेबुनियाद बातें बनाकर लोगों को गुमराह करने और अपनी सादिक व अमीन होने के दलाइल दे रहे हैं। वीडियो में हरीम शाह ने फयाजुल हसन चौहान को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी। जब भी मीडिया वाले मुझसे आपके बारे में पूछते थे मैं आपकी असलियत छुपाती थी। मैंने हमेशा यही कहा कि फयाजुल हसन बहुत अच्छे इंसान है। टिकटॉक स्टार ने कहा कि मैं फयाजुल हसन को सबके सामने बेइज्जत और बदनाम करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आपका सियासी कैरियर खराब हो। मुझे और अल्लाह को मालूम है कि आप कैसे इंसान हैं। शामिल करेंगे खेलों के मैदान में होने वाली हलचल BTV स्पोर्ट्स में। जूनियर वर्ल्ड कप और जूनियर एशिया कप की तैयारी के सिलसिले में 4 टीमों के दरमियान हॉकी सीरीज आज से नेशनल हॉकी स्टेडियम में शुरू। सीरीज में पाकिस्तान जूनियर, वापडा, नेवी और स्विस सॉल्वरन गैस की टीमें शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का कहना है कि जूनियर वर्ल्ड कप और जूनियर एशिया कप की तैयारी के लिए सीरीज का इनेकाद किया गया। कौमी टीम के फास्ट बॉलर वहाब रियाज को लंदन एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर और पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज दी 100 लीग में शिरकत के लिए लंदन पहुंचे थे। ताहम इमिग्रेशन हुकाम ने इन्हें आगाह किया कि आप गलत वीजे पर लंदन आ गए हैं, जिसके बाद वहाब रियाज को डिपोर्ट कर दिया गया और अब वो वीजा मसाइल हल होने पर दोबारा रवाना होंगे। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सुबह बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहा। सड़कों पर फिसलन के बायस कई मोटरसाइकिल सवार गिर पड़े। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह कराची के कई इलाकों में हल्की और तेज बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। बूंदाबांदी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि कराची में आज मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शहर कायद का मौजूदा दर्जे हरारत 30 सेंटीग्रेड है और कराची में 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर में होने वाली बूंदाबांदी से सड़कों में फिसलन पैदा हो गई, जिसकी वजह से कई इलाके में मुतादिद मोटरसाइकिल सवार स्लिप होकर जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में तबी इमदाद फराहम की गई। मानसून का पहला स्पेल 15 जुलाई को शहर कायद में हल्की बारिश का सबब बन सकता है। शहर में मामूल से तेज समुद्री हवाएं चलने का सिलसिला जारी। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक रवा साल मानसून के पहले बाकायदा स्पेल के बाइस शहर में हल्की बारिश हो सकती है। इससे कबल आइंदा चंद रोज तक शहर का मतला जुज़वी और मुकम्मल अबर आलूद रहने, जबकि रात और सुबह के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी मुतवक्के है। शहर में मामूल से तेज हवाओं के सबब दर्जा हरारत मुतदिल रहने की तवक्को है। अगले 3 रोज के दौरान ज्यादा से ज्यादा पारा 33 से 35 डिग्री के दरमियान रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुमेरात को शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 43.5 डिग्री जबकि कम से कम 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।